Yes, so we are going to discuss the numericals today on laser. So yesterday you have noted down this list of formulae. Have you, everyone? Are you able to see the PPT? And am I audible clearly? Okay, so these are the list of formulae on which we are going to take the numerical. Now, how the numerical will come? So that I will write over here. So something like this. Like suppose we have the numerical on coherence, length, and time. These three formulae. Okay. So how it will be? It will be very simple. Like first numerical. Write down. Find the coherence length for a laser of bandwidth. So this is first numerical. Find the coherence length of a laser of bandwidth 100 megahertz. Okay. So bandwidth. Bandwidth means 100 megahertz bandwidth. Bandwidth is nothing but delta mu. Okay. So delta mu. You look at the unit. Mu is a unit. Sorry, hertz is a unit of frequency. So it is of course delta mu. So कितना है delta mu? 100 megahertz. Mega means 10 raised to power 6. हाँ? किलो के बाद आता है मेगा. So 10 raised to power 6 hertz. This is the bandwidth. अब इसका कोहेरेंस लेंथ निकालना है. तो बैंडविड्थ का डायरेक्टली रिलेशन होता है कोहेरेंस टाइम के साथ और फिर कोहेरेंस टाइम के बाद मिल सकता है कोहेरेंस लेंथ. तो आप चाहो तो स्टेप बाय स्टेप निकाल सकते हो. तो पहले हम निकालेंगे सपोज कोहेरेंस टाइम टी कोहेरेंस इक्वल टू. सो टी कोहेरेंस इज 1/डेल्टा न्यू. एग्जाम में फॉर्मूले लिखना है. फॉर्मूले लिखने के मार्क्स होते हैं. सो 1/डेल्टा न्यू मीन्स 1/100 इंटू 10⁻⁶. सो मतलब 1/10⁸8. ये ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻8 seconds. This is coherence time and therefore L coherence is L equal to CT. So it is C. C means speed of light. 3 into 10⁻⁸ into 10⁻⁻8 सेकेंड्स. और ये यूनिट कैंसिल हो जाएंगे. +8 -8 कैंसिल. लेंथ ऑफ कोहेरेंस आया 3 meters. Have you understood the numerical, everyone? समझा? Yes, very good. Have you noted down the numerical? Okay. So shall we try solving another one? एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. Okay, let us try solving this one. Just hold on. हाँ हाँ. Okay, try solving this numerical by your own. So let me write the numerical number second. Suppose find the coherence length for laser of wavelength 4800 Armstrong unit and
line width of 200. Now I don't have the symbol of lambda here, so I need to write the symbol something like this. Lambda. Okay. Yes, so find the coherence length for laser of wavelength 4800 Armstrong unit and line width of 2000, 200 lambda. So now what is it? Coherence length निकालना है of wavelength दिया है. So what is given to you? Lambda is given to you. Lambda is given 4800 Armstrong units. And line width of wavelength 200 lambda. Now what is it? Do you know? Line width is not now band width. It is line width. Lambda का width. Lambda का width होता है delta lambda. So now delta lambda is given 200 lambda. Okay. So now which formula you will be using? First, second or third? Length of coherence निकालना है. Therefore L coherence equal to. Please don't mind my handwriting. कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? पहला, दूसरा या तीसरा? सो लैम्डा स्क्वायर करना है तो भूलो मत. 4800 एमस्ट्रॉन्ग यूनिट है तो इंटू 10⁻⁻10 का स्क्वायर अपॉन डेल्टा लैम्डा इज 200 लैम्डा. 200 इंटू लैम्डा इज फिर से 4800 है ना. एमस्ट्रॉन्ग यूनिट है मतलब फिर से इंटू 10⁻⁻10. आर यू गेटिंग इट? सो देयरफॉर एल कोहेरेंस इज इक्वल टू ये स्क्वायर और एक ये तो कैंसिल हो जाएगा. फिर इसके 2 ज़ीरो और इसके 2 ज़ीरो कैंसिल. ये 2 वन ज़ा 2, 2 24 ज़ा. So 24 10⁻⁻10. So lambda will be, I can say, 24 Armstrong units. Got it everyone? सब चीज़ें कैंसिल हो गई ये क्योंकि लैम्डा स्क्वायर और एक डेल्टा लैम्डा का ये लैम्डा कैंसिल. तो सिर्फ बचा 4800 4800 10⁻⁻10 अपॉन 200. सो ये कुछ तो भी सब पावर वगैरह कैंसिल हो गए. 24 एंगस्ट्रॉम यूनिट आएगा. आया क्या सबका? इतना समझ में आया न्यूमेरिकल? यस. प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स. आर यू गेटिंग माय वॉइस? Are you getting the numericals also? How to solve? Okay. So shall we proceed for the next numerical? Okay, now try solving this one. Third numerical. What will be the coherence time for a laser of length 3 kilometer? चलो, what will be the coherence time for a laser of length 3 kilometer? आप लोग ट्राई करो, सॉल्व करो. लेजर ऑफ लेंथ का मतलब कोहेरेंस लेंथ. हाँ, वेवलेंथ नहीं बोला है, लेंथ बोला है, तो वो कोहेरेंस लेंथ होती है. तो कोहेरेंस लेंथ गिवन है 3 किलोमीटर. तो कोहेरेंस टाइम निकालना है. कर सकते हो? चलो करो सॉल्व और आंसर टाइप करो.
Yes, are you solving? Write your answer in the chat box. है बहुत सिंपल है. What will the coherence time for a laser of coherence length 3 किलोमीटर. किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना मत भूलो. कोहेरेंस लेंथ दिया है, कोहेरेंस टाइम निकालना है. So what is the answer? Anyone? किसी का आंसर नहीं आया अब तक? Okay, 10 raised to power minus 5 seconds. Okay, any other answer? Okay, 10 raised to power minus 5 seconds again. साक्षी, ठीक है. बाकी लोगों का आया क्या आंसर? सिंपल है ना. आपको लेंथ ऑफ कोहेरेंस दिया है, एल को इज V1. यस, 10 raised to power minus 5 सेकेंड सबका आ रहा है ना. एल को कितना दिया है? 3 किलोमीटर, मतलब 3 इंटू 10 raised to power 3 meters. Therefore T को इक्वल टू L इक्वल टू सी टी, तो T इक्वल टू L बाय सी है ना. क्या बन रहे हैं हमारे? So this 3 is going to get cancelled. Power 3 is going to get adjusted. So it is 10 raised to power minus 5 seconds. Very good everyone. Yes. So note down this numerical. So आपको आइडिया आ गया है कि कोहेरेंस लेंथ एंड टाइम के न्यूमेरिकल कैसे आएंगे. इट विल बी ऑफ दिस काइंड ओनली. ठीक है, या तो आपको लाइन विड्थ या बैंड विड्थ या फ्रीक्वेंसी स्प्रेड या वेवलेंथ स्प्रेड दिया रहेगा. ठीक है, लाइन विड्थ या वेवलेंथ स्प्रेड मतलब डेल्टा लैम्बडा, बैंड विड्थ या फ्रीक्वेंसी स्प्रेड मतलब डेल्टा न्यू. याद रखो. ठीक है, और फिर आपको टी कोहेरेंस या एल कोहेरेंस वगैरह निकालना है अकॉर्डिंगली. ओके, सो हैव यू नोटेड द न्यूमेरिकल एवरीवन? सभी न्यूमेरिकल ऐसे ही आने वाली है और काफ़ी आसान है, स्कोरिंग है ना. सो एग्ज़ाम में लेज़र का न्यूमेरिकल पोर्शन तो बिल्कुल स्किप नहीं करना है, प्रिपेयर करना है. अच्छा, सो अब ये जो चौथा फॉर्मूला है इसके ऊपर के न्यूमेरिकल देखते हैं. ठीक है, N2/N1. अब इसके ऊपर के न्यूमेरिकल कैसे आएंगे? इसके वर्डिंग कुछ ऐसे रहेंगे. ये कौन सा न्यूमेरिकल नंबर 4 है सपोज. हाँ, व्हाट विल बी द population ratio of ratio of two states for a laser of wavelength 4000 Angstrom unit at room temperature. और k का वैल्यू दिया रहेगा. k इज 1.38 10 raised to power minus 23. ठीक है, उसका जो भी यूनिट है, आई डोंट रिमेंबर द यूनिट राइट नाउ. सो के दिया रहेगा और ये इस तरह का न्यूमेरिकल का वर्डिंग रहेगा. सो व्हाट विल बी द पॉपुलेशन रेशियो ऑफ द टू स्टेट्स. सो ऑफकोर्स आपको क्या निकालना है? पॉपुलेशन रेशियो ऑफ द टू स्टेट्स मतलब N2/N1 निकालना है. ठीक है,
for a laser of wavelength 4000 Armstrong unit. So lambda is given to you 4000 Armstrong unit. Now you will say कि मैडम यहाँ के फॉर्मूला में तो लैम्बडा कहीं है ही नहीं, so कैसे? फॉर्मूला में तो E2 माइनस E1 है, तो ये तो पता है ना कि E2 माइनस E1 कब आता है? When the atom jumps from higher energy to low energy, it emits the photon of wavelength lambda. So actually E2 माइनस E1 को हम बोल सकते हैं डेल्टा E E2 minus E1 and that's equal to प्लैंक्स का इक्वेशन याद है सबको? E इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, है ना? तो एक्चुअली ये जो फॉर्मूला है इसको मॉडिफाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज ई टू द पावर माइनस एच अपॉन लैम्डा के लैम्डा के टी, राइट एवरीवन? सो डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करेंगे, सो ई टू द पावर माइनस h. Now I will use this. Put the values 6.63 into 10 to the power minus 34. ठीक है, upon I will put everything in bracket lambda 4000 Armstrong unit मतलब 10 to the power minus 10 into k. K is 1.38 10 to the power माइनस 23 टी इज रूम टेम्परेचर मतलब जनरली 300 केल्विन, ठीक है, केल्विन में पकड़ना है कभी भी। सो ये हो गया मेरा पूरा वैल्यू। अब इसको कैलकुलेटर में कैसे डालेंगे? ये ई के पावर वाला जो कैलकुलेशन है वो अलग से कर लो, ओके। सो आई विल डू सेपरेटली 6.63 डिवाइडेड बाय, सो 4000 है डिवाइडेड बाय फिर से 4000 डिवाइडेड बाय 1.38 डिवाइडेड बाय 300। 10 के पावर अलग से करो तो ये आंसर आया 1.0 10 टू पावर माइनस 9 1 पॉइंट सॉरी ई टू द पावर आया है माइनस में 1.0 10 टू पावर माइनस 9, और अभी 10 का जो फ्रैक्शन का पावर है -34 -10 मतलब -24 -23 मतलब -1, सो टी टू पावर -1 बचा तो ये -9 का पावर बन जाएगा -34 और ये नीचे है -33, हाँ तो -1 का पावर बचेगा सिर्फ, है ना? सो ई टू द पावर -1, तो मतलब ई टू द पावर -0.1। अब ये ई का पावर कैसे निकालना है कैलकुलेटर में? आपका जो ये है ना लॉग या ई टू द पावर का फंक्शन भी दिख रहा है, देखो ई टू द पावर दबाओ और -0.1 दबाओ तो 0.9 वगैरह कुछ तो भी आया है। अब पहले हालांकि 10 का पावर आना चाहिए था, न्यूमेरिकल में कुछ तो भी गड़बड़ है। अच्छा सॉरी, आई हैव नॉट डन द स्क्वायर्स ऑफ दिस, नो देर इज़ नो नीड ऑफ स्क्वायर, सॉरी देर इज सम कैलकुलेशन मिस्टेक, ये 1 पॉइंट नहीं आता। 6.63 डिवाइडेड बाय 4000 डिवाइडेड बाय 1.38 divided by 300, so 0.00004 into 10 raised to power minus 1, to e to the power minus 0.1234, इतना छोटा ये कुछ तो भी ई टू द पावर आ रहा है, देखते ये सही है क्या? तो 0.99 वगैरह N2/N1 का रेशो आ रहा है, एक्चुअली इतना बड़ा रेशो नहीं आता, ओके, रेशो बहुत छोटे आते हैं।
ठीक है, 10⁻⁻ में रेशियो आते हैं. सो लेट इट बी. अच्छा, आई हैव फॉरगॉटन एच सी. यस यस यस, यहाँ पे 3 × 10⁸ भी है. सॉरी, ये जो है ना, नो वन कमेंटेड इवन. ऊपर 3 × 10⁸ भी है ना, वही तो. हाँ, तो अभी ये पावर निकल जाएगा. सॉरी, तो ये इसके साथ इंटू 3 × 10⁸ है. हाँ, सो व्हाट आई विल डू इज आई विल करेक्ट दिस. ये नंबर रॉन्ग है, इसको मैं करेक्ट करती हूँ. हाँ, सो ये आएगा दैट्स इक्वल टू e⁻. अब ये 0 पॉइंट था ना, 0.1234 0 के बाद 4 इंटू 3. अब इंटू 10⁸ मतलब 1 2 3 4 5 6 7. तो e⁻−120 वगैरह कुछ तो भी आ रहा है. तो e⁻−120 अगर मैं करती हूँ, yes, 7.6 10⁻⁻53. Now it is correct. 7.6 into 10⁻⁻53 10⁻⁻53. इतना छोटा ये पॉपुलेशन रेशियो आता है. सो दिस इज द आंसर. हैव यू अंडरस्टूड एवरीवन? ये चीज़ें थोड़ा सा सीखना पड़ेगा तुमको. 10 के पावर में कैसे कैलकुलेशन करते हैं. तो पहले ये पूरा कैलकुलेशन सेपरेटली करो, एच सी अपॉन लैम्बडा के टी वाला. ठीक है, यहाँ पे सी छूट गया फॉर्मूला में, प्लीज़ करेक्ट. एच सी अपॉन लैम्बडा के टी. ठीक है, ये फॉर्मूला ऐड अप कर सकते हो आप अपने लिस्ट में. सो मेरा भी सी यहाँ पे छूट गया था, इसलिए कैलकुलेशन में गड़बड़ था. सो ये फ्रैक्शन में सी है इसके साथ. हाँ, सो लैम्बडा के टी, बाकी चीज़ें तो मैंने रखी, तो सी की वजह से वो पावर फिर बराबर मैनेज हो गया, और ये इतना हमारा आंसर आता है. गॉट इट एवरीवन? आंसर हमेशा ऐसे ही आएगा, 10 के कुछ माइनस पावर में फ्रैक्शन. फाइनल e⁻ का आंसर. और e⁻ कैसे निकालते हैं? यू हैव टू गो टू e⁻ इन द कैलकुलेटर एंड देन प्रेस माइनस एंड देन राइट द नंबर. लाइक वो e⁻−120 वगैरह यहाँ पे आ रहा था. सो इट इज़ समथिंग. गॉट इट एवरीवन? समझ में आया? यस, हैव यू अंडरस्टूड दिस न्यूमेरिकल? एक ऐसा न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं क्या? चलो, लेट अस ट्राई सॉल्विंग सच न्यूमेरिकल. Okay, so let me clear the annotation and let me write the numerical. So find the population ratio of excited to ground state when laser has a transition from 10 electron volts to, now I am taking random, 2 electron volt at 1000 or at I can say 500 Kelvin. सो अभी ये दिया है आपको, फाइंड द पॉपुलेशन रेशियो ऑफ एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट व्हेन लेजर हैज़ अ ट्रांजिशन ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एट 500 केल्विन. चलो बताओ, कैन यू सॉल्व इट? प्लीज़ ट्राई. अभी क्या दिया है आपको न्यूमेरिकल में? क्या क्या दिया है बताओ. के वही यूज़ करना है जो पिछली बार हमने यूज़ किया था, 1.38 ×−23 वाला. टी दिया है, कितना दिया है टी? टेम्परेचर कितना दिया है? टेम्परेचर 500 केल्विन. यस, व्हाई यू पीपल आर नॉट रिस्पॉन्डिंग? एनीवन? आर यू नॉट गेटिंग माय वॉइस? एम आई ऑडिबल? यस, देन प्लीज रिस्पॉन्ड. हाँ, 500 केल्विन का टी दिया है. अब ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ये क्या है बताओ तो.
करेक्ट, दीज आर E2 एंड E1. हाँ, उल्टा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज बड़ा एनर्जी E2, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज E1. सो आपको V2 माइनस E1 करना है, दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करके फिर फॉर्मूला में रखो. इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल कैसे कन्वर्ट करोगे? यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. 1.602 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करो. गॉट इट एवरीवन? कैन यू सॉल्व? Okay, I'll give you 5 minutes. You please solve it by yourself. Try solving. So those who can solve by themselves, please do not look whatever I am writing on the board. Yes, I want the answers. Huh? Once you are done, put your answers in the chat box. You have to convert it into joules. Huh? So therefore, excited state to ground state मतलब N2 by N1. You have to put all these things. So now do the fraction in the calculator. So कैलकुलेटर में पूरा टाइप नहीं करते बैठना ई की पावर में इतना बड़ा, सिर्फ फ्रैक्शन कैलकुलेटर में निकालो. दैट इज 8 इंटू 1.6 डिवाइडेड बाय 1.38 डिवाइडेड बाय 500. इंटू नहीं है, डिवाइडेड बाय. तो ये 0.0185 इंटू 10⁻⁻, -19 नीचे, ऊपर जाएगा तो +23. सो ये हो गया +3 +4. सो +4 मतलब 1 2 3 4. सो e⁻ -185. ये पावर निकल जाएगा. याद रखो कभी भी आपका e⁻ -17 -16 -5 -120 -60 ऐसा कुछ तो भी नंबर ही आएगा. सो e⁻ -185 is 4.5 10⁻⁻81. Very big fraction. एक्चुअली मैंने रैंडमली 10 और 8 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वगैरह लिया, इसलिए आंसर ऐसा आ रहा है. सो दैट्स ओके. अच्छा, आया क्या ये आंसर आप लोगों का? आर यू एवर बीइंग ट्राइंग और नॉट? ट्यूटोरियल. यस, ट्राई किया क्या आप लोगों ने? आंसर आया क्या? या डायरेक्टली स्क्रीन के ऊपर से कॉपी करके लिख दोगे? व्हाई यू पीपल आर नॉट पुटिंग समथिंग इन द चैट बॉक्स? ट्राई किया मिताली? अच्छा, और किसने किसने ट्राई किया बताओ तो. आंसर आया कि e⁻⁻185 तक? चलो, लेट मी नो द नेम्स हु हैज ट्राइड. ई का कैलकुलेशन कैसे करते हैं? आपके कैलकुलेटर में e⁻ का बटन है, e⁻x का.
है क्या? e to the power 18.6 आ रहा है क्या? माइनस है, e to the power माइनस 18.6. सो लेट इट बी. आपका ये फाइनल आंसर कितना आता है उससे फ़र्क नहीं पड़ता. हाँ, तो आपके कैलकुलेटर में e टू द पावर x का बटन है, तो e टू द पावर x दबाओ तो वो e लिख के आएगा, फिर उसका पावर दिखाएगा और ब्रैकेट देगा आपको, ओपनिंग ब्रैकेट, उसके सामने टाइप करो -18.5 वगैरह जो भी है. ठीक है. यस. डन एवरीवन. सो इस तरीके से न्यूमेरिकल आएंगे एग्जाम में. ओके. सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट स्लाइड में ये न्यूमेरिकल है जो सैम्पल के तौर पे मैंने यहाँ रखा है, क्योंकि मैं आपको पीपीटी भेजूंगी तो आपको न्यूमेरिकल एक हाथ दो होना चाहिए आपके पास. ठीक है. सो हियर आई कैन से द लेजर चैप्टर इज ओवर. It will be in your CA2 of course. Okay.